हेलो नमस्कार। खुश रहो बच्चों। आई एम जेवीएन डॉक्टर शाहनवाज आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे we discuss about most important concept of research methodology. Today topic is t-test. T-test is most important test of parametric test. The t-test mostly widely used parametric test. It is also known as a student t-test. A significant test used to determine the mean of sample is different from the known average. Two sample t-test is used to establish a difference between mean of two similar sets. The t-test use the mean standard deviations and number of sample to calculate the test statistics in the data set with a large number of sample. The central value for the student t-test is 1.96 for an alpha 0.5% obtained from t-test tables. The calculation to determine the t-value is relatively sampled, but it can be found easily online in every alternative books. Indicator for t-test: when sample are small or sample less than 30. Next indicator of t-test is population variance are not known. Use of t-test: assumptions: sample are randomly selected, data utilized in quantitative, variable flow normal distributions, sample variance are mostly same in both the groups under the study, sample are small, mostly lower than 30. T-test for different purposes. T-test for one sample, T-test for two sample. T-test for unpair of two samples. T-test for two sample divided in two parts. T-test for unpaired two sample test. T-test for paired two sample test. One sample. In one sample, compare mean. The one sample t-test for mean. Compare variance. One sample t-test for variance. Compare proportions. One sample proportion tested. Under the one sample test. Two sample test. Compare means two sample t-test for mean. Compare variance. Two sample t-test for variance. Compare proportions for two sample test for proportions. Formula to calculate t-test: sample mean minus population mean divided by standard error, or sample mean minus population mean divided by standard deviations multiply root under number of observations. Both formula we can use to calculate the t-test. Now we will discuss about some problems and solutions for t-test. We can calculate the t-test with some example. For example, one question is: the manufacturer of certain make engine and claim that his engine has mean life of 15 years. ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्लेम कर रहा है कि इसका 15 ईयर इसका मशीन इंजन जो है 15 ईयर चलेगा. इसकी मीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 15 ईयर है. ए रैंडम सैंपल ऑफ 7 सच इंजन गेव द फॉलोइंग वैल्यू. और कुछ इसके रेंडमली सिलेक्टेड वैल्यू भी है.
life of engine in year 19, 20, 26, 15, 17, 13, 22. Can you regard the producer claim to be valid at 1% level of significance? 1% level of significance पे ये जितने भी रेंडमली है, ठीक है, और उसका जो क्लेम है कि लाइफ लाइफ मीन कितना है 15 ईयर है, तो ये करेक्ट है या डिसकरेक्ट है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, हम इसको सॉल्यूशन में देखते हैं। तो हम इस क्वेश्चन का टी टेस्ट निकालेंगे, ठीक है। अब गिवन द पॉपुलेशन मीन 15 ईयर, यानी पॉपुलेशन मीन क्या है इसका 15 ईयर है, और इसका लाइफ ऑफ इंजन क्या है, ये डिफरेंट, ये सैंपल ले लिया गया है 19, 21, 26, 15, 17, 30, 13, 22, ये रैंडम सिलेक्शन है, और ये 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये जो है उससे जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का क्लेम जो है करेक्ट है या डिसकरेक्ट है, ठीक है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट 1% का मतलब ये हुआ कि रिसर्चर ये मान रहा है कि 99% हमारा जो एजम्पशन है एक करेक्ट है, और 1% 99% हमारा ये वर्क जो है कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट है, और 1% इनसिग्निफिकेंट है। अब क्या करेंगे हम, नल, हमने क्या बताया था टी टेस्ट के लिए, सबसे पहले सिस्टम क्या था, नल और अल्टरनेटिव को फॉर्मुलेट करना, तो हमने नल फॉर्मुलेट कर लिया, एच नॉट म्यू इक्वल टू एक्स बार, और एच ए म्यू नॉट इक्वल टू, अब पहला है कि पहला नल हाइपोथेसिस क्या है कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन दोनों आपस में बराबर हैं, और अल्टरनेटिव इसकी हाइपोथेसिस है कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन आपस में बराबर नहीं है। तब हम क्या करेंगे, जस्ट वी पुट द फॉर्मूला ऑफ टी टेस्ट एंड पुटिंग द वैल्यू of observations, life of engine and population mean, putting the value of sample mean and population mean, standard deviation and number of observations, just calculate the t-test, or standard deviation here is the x minus x bar का whole square divided by n minus 1 root under। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मीन निकाल देंगे, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन मीन दिया गया है, ठीक है, और पॉपुलेशन मीन दिया गया है, तो हम सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। तो यहाँ इतना का काम हो जाएगा, तब हम यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको पता है, तो सबसे पहले मीन निकाल दिया। तो हम मीन कैसे निकलता है कि summation of all observation divided by number of observations, this is the summation of observation, or total number of observation is 7, we just divided by 7, getting the mean 133 divided by 7 equal to 19, हमको मिल गया 19, मीन कितना मिल गया 19। अब हम इस 19 से हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन के निकालने के लिए सबसे पहले हमको डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन निकालना है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन लिख दिया 19, 21, 26, 15, 17, 13, 22, ठीक है। अच्छा, हमने हमारा मीन कितना था, हमारा मीन 90 था, तो 90 माइनस 19, 19 माइनस 19 0 हुआ, और 21 माइनस 19 2 हुआ, 26 माइनस 19 7 हुआ, और 15 माइनस 19 माइनस 4 हुआ, 17 माइनस 19 माइनस 2 हुआ, 13 माइनस 19 माइनस 6 हुआ, और 22 माइनस 19 3 हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कि जो डेविएशन हमने निकाला है उस डेविएशन का हम स्क्वायर करते हैं। तो 0 का स्क्वायर 0 है, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16,
2 का -2 का होल स्क्वायर 0.4, -6 का होल स्क्वायर 3.6 और 3 का होल स्क्वायर 0.9। हम इसको सम करेंगे तो हमारा सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये कितना आ रहा है 118। जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमने, और हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 7 है, तो n के वैल्यू पे n का वैल्यू हम 7 रखेंगे, -1 कर देंगे तो 118 डिवाइडेड बाई 7 - 1 रूट अंडर इक्वल टू 118 डिवाइडेड बाई 6 रूट अंडर, हमको मिल गया 4.43%। अब हमारा हम क्या करेंगे, ये अब हम क्या करेंगे, t का फॉर्मूला लिखेंगे x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू n रूट अंडर, और हमारा मीन डेविएशन क्या है 19 है, हमारा ये मीन क्या है 19 है, और हमारा ये म्यू क्या है पॉपुलेशन मीन क्या है 15 है, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना निकला 4.43 इंटू रूट अंडर 7, वी गेटिंग द 2.39%। This is the calculated value. This is the calculated value of t. 2.39 is the calculated value. अच्छा, अब हम क्या करेंगे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे हम टेबल में देखेंगे कि हमारा इस 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है n-1 होता है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो 6 पे हमारा कितना कितना है 3.707, ये टेबुलेटेड वैल्यू है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशन वैल्यू कम है और कैलकुलेशन वैल्यू इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू। वी सीन दैट द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन tabulated value, so the null hypothesis is extracted, and hence we can say that there is no difference between the population mean and sample mean. Thank you. In next lecture we will discuss about the concept of t-test with some problem and solutions. Thank you.